Oh, we love chemistry, ionization energy, atomic size and affinity. When you think of an atom and its radius, listen close, you just gotta trust. Get out your table of elements and follow these rules and you'll benefit. There's two parts that you need to know. Number of protons and electrons show the size of the element and if you know how to relate them, you'll understand. Group 1 are the planet O's, and the farther you go down, the radius grows, cause electrons and protons are increasing, filling more shells, but you wait and see. The radius decreases from left to right, cause electrons with more protons, they hold them tight. They pull real close and decrease the size, and then it jumps down to the next alkali. So today's topic is ionization energy. Chapter number 3, periodic table and the periodicity of properties. Before moving forward, let's have a review of the previous lecture, that is the atomic radius. In the periodic table, horizontal rows are called the periods, and in the period, atomic number increases continuously. The number of the period to which each element belongs shows its shell number, in which that element has last electron. For example, the element in the period number 1 has last electron in first shell. In period number 2, the valence shell is shell number 2. In period number 3, valence shell is shell number 3, and so on. The last 7th period has 7 electron shells. The properties of the element in the period goes on changing. For example, we can see their atomic radius. As we have discussed in the last lecture, the atomic radius goes on decreasing. There are so many reasons, like the nuclear charge goes on increasing, and the shell is same in all the elements of the period, and the shielding effect remains the same. That's why in the period, atomic size goes on decreasing. While moving in the group, that are the vertical columns in the periodic table, we see as we move in the group, each new member has one more shell. Like in the first member of the 1A, that is the lithium, the valence shell is second shell, while in the sodium the valence shell is the third one. In the potassium it is the fourth, fifth for the rubidium, and sixth for the cesium. Because of increase in the number of the shells, the distance between the nucleus and the outermost shell increases, thus the atomic radius increases. Thus there are the more and more intervening electrons and more repulsion between these electrons that causes the size of an atom to go on increasing in the group. Clear? So we have discussed that down the group the atomic radius increases. So final review is, down the group the atomic radius increases as the number of the shell increases, as the distance between the nucleus and the outermost shell increases, as the force of the attraction between the nucleus and the outermost shell decreases. It means effective nuclear charge decreases, and shielding effect increases as there are more and more electrons to shield the valence shell. So
because of all these factors, the atomic radius increases down the group, while moving in the period the atomic radius increases. हमें इस पिक्चर में बॉल की साइजेस से भी आइडिया हो रहा है ना कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as we move from top to bottom in the group, and decrease हो रहा है when we move from left to right in the period. दो टर्म्स और हमने इसी केस में जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था देखी थी, वो क्या थी? So the first term is effective nuclear charge. Due to the repulsion between the electrons present between the nucleus and the valence shell, the valence electron experiences less nuclear charge than the actual charge, and this is called the effective nuclear charge. ये हमने बहुत अच्छी तरह लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में और ज़्यादा इतने शेल होते हैं तो न्यूक्लियस का एक्चुअल होल्ड, जो उसकी एक्चुअल पावर होती है जिसे वो फर्स्ट शेल पे अप्लाई कर रहा होता है, उसी पावर को वो लास्ट पे भी उसे करना चाहिए, लेकिन दरमियान में इतने ज़्यादा शेल्स और इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पावर रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो वो एक्चुअल वो पावर नहीं लगा सकता. क्या होता है, वो पावर जो कम हो जाती है और जितनी पावर वो अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं इट इज़ द इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, सेकेंड हमने क्या देखा था, एक टर्म हमने पढ़ी थी, डेट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट. शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना, स्क्रीन करना. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन फील्ड एनर्जी लेवल, जिनको हम इनर शेल्स कहते हैं या उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. दे स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो स्क्रीन करते हैं ना, वो उतनी ज़्यादा पावर नहीं लगाने देते. ठीक है, इसी वजह से तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. तो ये जो इफेक्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, फिर हमने ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि शील्डिंग इफेक्ट जब हम पीरियड में मूव कर रहे होते हैं तो वो सेम रहता है. उसके पीछे रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ शेल सेम होता है पीरियड में. एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें जो पीरियड नंबर है इट शोज द शेल नंबर. फॉर एग्जांपल इन द पीरियड नंबर 2 जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में शेल जो है वो सेकंड ही होगा इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन. तो वो जो सेकंड शेल है इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है. ठीक है, तो इसमें तो शील्डिंग दूर होने वाला काम ही नहीं आया. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी पॉइंट पे ऐड हुआ है ना, उसी डिस्टेंस पे ऐड हुआ है. ठीक है, उसका डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा, अगले शेल में तो नहीं गया, सेम शेल में गया है, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ऐड हो गया. और जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड हुआ उसने न्यूक्लियर चार्ज को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो ज़्यादा हो गई. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव न्यूक्लियस क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन्स. ठीक है, तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी एज द प्रोटॉन इंक्रीजेज. और डिस्टेंस जो है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अब जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल को ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा क्योंकि उसकी पावर इंक्रीज हो गई है, तो वो थोड़ा सा मूव कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, ज़्यादा जोर लगा रहा है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल डिक्रीजेस. ठीक है, तो ये वाले फैक्टर की वजह से क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट तो सेम ही रहता है, ये एज सच पीरियड में कोई काम नहीं करता. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट अब हम देखते हैं कि ग्रुप में क्या करता है. ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप वी नो द नंबर ऑफ द शेल इंक्रीजेस, वो तो इंक्रीज हो रहे होते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है. वो डिक्रीज इस वजह से कि देखो ना, प्रोटॉन तो ऐड हो गया लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड हुआ है वो तो डिस्टेंस पे मूव किया है, वो और दूर गया है, नए शेल में गया, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एज सच कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता ग्रुप में. ठीक है, अब चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, दो मैग्नेट्स के दरमियान में अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा कर दोगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी. हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था ना, जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो फोर्स कम हो जाती है. ठीक है,
तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ द शेल इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेल ऐड होंगे, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ज़्यादा शील्ड करेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में इंक्रीज करता है। Now we move towards our main topic, that is the ionization energy. Ionization energy is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to form an ion. अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक तो ये वो एनर्जी है जो हमें रिक्वायर है। रिक्वायर का मतलब क्या है, वी हैव टू प्रोवाइड इट टू द एटम। क्यों एटम को देनी है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब एक बात तो यही है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। सेकंड क्या बात है, कहाँ से रिमूव करना है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो एटम है वो आइसोलेटेड भी होना चाहिए, वो गैशियस भी होना चाहिए। ठीक है, और एक बात तो हमें यहाँ से थोड़ा सा हमें हिंट मिल गया कि हम इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो होगा क्या, एटम जो है वो क्या होगा, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। आयन क्या है, आयन कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिस पे क्या हो, चार्ज हो, तो वो क्या है हमारे पास, वो आयन है। एटम और मॉलिक्यूल विद द चार्ज इज़ एन आयन। जो न्यूट्रल एटम होता है, हमें पता है कि एटम न्यूट्रल होता है ना, वो न्यूट्रल क्यों होता है, बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो आयन है, आयन दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव आयन आप देखो ना, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अगर तो प्रोटॉन डोमिनेट करेंगे, डोमिनेट करने का मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, फिर ही डोमिनेट करेंगे ना, ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा क्योंकि प्रोटॉन आर पॉजिटिव। ठीक है, तो जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास आयन होता है वो पॉजिटिव आयन होता है और हम उसे कहते हैं कैटायन। नेगेटिव आयन क्या बनता है, जब प्रोटॉन कम हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये बात तो पता है ना कि हम जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन ऐड या रिमूव तो नहीं कर सकते, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, हमने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा, द पॉजिटिव वन। लाइक hydrogen, we know hydrogen has one proton and the one electron and it has no neutron. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज किया ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके अंदर क्या बचा, वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन ही था, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे H के ऊपर हम प्लस लिख देंगे, H प्लस पॉजिटिव आयन। ठीक है, कि अब सेंटर में सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो पहले से ही नहीं था। साइड पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा था, वो भी रिवॉल्व कर रहा था, वो भी हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन बन गया जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। आप देखो, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोटॉन है, इसलिए हम इसे इटसेल्फ प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी आप रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा। ठीक है, आयन जो है हमारे पास कैसे बनते हैं, या तो वो पॉजिटिव आयन होते हैं या वो नेगेटिव आयन होते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कैटायन बन जाते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं ना, नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करता है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन्स आर कॉल्ड एनायन। ठीक है, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैटायन्स। ठीक है, अब हमारा आज मेन फोकस है कैटायन्स पे, कि हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना है और उसके लिए हमें क्या क्या मतलब एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, कौन से एलिमेंट्स को कैसे देनी पड़ती है, हम ये देखेंगे।
ठीक है। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। हम एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट हो जाता है। दैट एनर्जी नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल। अब बात यह है कि वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़रूरी क्यों है? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो हैं दे वांट टू अचीव द स्टेबिलिटी एंड फॉर द स्टेबिलिटी दे फॉलो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर आउटर मोस्ट सेल में आपने पढ़ा था कि इफ़ दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल, तो एटम की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दे और उसका प्रीवियस सेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वैलेंस सेल के अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव करना है और उसे हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और चूंकि ये वैलेंस सेल में है, वैलेंस सेल जो होता है वो न्यूक्लियस से फार अवे होता है, तो उसे हम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी बात जो डेफिनेशन में एक समझने वाली थी वो थी आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जब हमने ये देखना है कि हमने एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी है, तो हम सिर्फ एक सिंगल एटम पे फोकस करेंगे, एक सिंगल एटम को कितनी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड का मतलब यही है ना। गैसियस क्यों है? आपको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में कम है थोड़ी, और गैसेस में तो बहुत ही कम है। और एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। चूँकि वो बहुत दूर होते हैं, दूसरे किसी एटम के ऐसा सच इन्फ्लुएंस में नहीं होते। बहुत, आप समझ कहते हैं कि हम नेग्लिजिबल फोर्स है जो दूसरा एटम उसके ऊपर अप्लाई कर रहा होता है और वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। तो साथ से कौन सा एटम है किसी का, उस पर मतलब कोई ऐसा एटम के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इसलिए हम गैसियस स्टेट में एटम ले रहे हैं कि हमें पता चले कि ये एक सिंगल एटम को कितनी एनर्जी रिक्वायर है टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल और फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। Now consider the example of sodium. Sodium has 11 electrons in the outermost shell. 2 electrons are present in the first shell. 8 electrons are present in the second shell. And only 1 electron, that is the 11th one, is present in outermost shell, that is the third one. We know the sodium is present in third period. So it has valence shell number 3. ओके, और इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। सो इन द पीरियड कौन सी पोजीशन पे होगा? फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में आप लोकेट करो पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा? सोडियम। अब सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। टू अचीव द स्टेबिलिटी सोडियम हैज़ 2 ways. One is to lose this outermost electron as the second energy level or the shell is complete. The second way is to gain 7 more electrons in the third shell to achieve the stability, and as the sodium follow the octet rule. तुम दोनों में से कौन सा काम लगता है आसान? Is it easy to knock out the 1 electron from the third shell or to gain 7 more electrons in the third shell? Yes, it is easy to lose 1 electron. So the sodium loses 1 electron. As it loses the 1 electron, the 1 proton got higher in the nucleus. That's why the sodium acquire positive charge. प्रोटॉन 1 ज़्यादा हो गया ना, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही प्रोटॉन थे। हमने 11th इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया क्योंकि हमें तो स्टेबिलिटी से गर्ज था। तो प्रोटॉन को तो कुछ थी ना कि अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही है, तो प्रोटॉन 11 हो गए और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। ठीक है, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आगे हो गया, तो इसलिए एटम पे, सोडियम एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? +1, और ये सोडियम कैटआयन बन गया। कैटआयन मीन्स पॉजिटिव आयन। और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट,
the negative electrons are attracted to the tiny positive nucleus. हमें पता है ना, the valence electrons, जितने भी electrons हैं सबको कौन रहा है अपनी तरफ? The nucleus. और क्यों attract कर रहा है अपनी तरफ? Because the nucleus acquires the positive charge because of the presence of protons in the nucleus. Okay, this attraction keeps the electron held in the shell. इसी attraction की वजह से electrons जो हैं वो shell में move कर रहे हैं. ठीक है. When an ion is formed, the energy is supplied to remove an electron. जब पॉजिटिव आयन बनता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है ना, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचा हुआ है. अब आप देखो ना कि किसी एक को हमने एक चीज़ पकड़ के रखी हुई है, किसी दूसरे ने हमारे हाथ से लेके जानी है तो हमारे से खींच के लेके जानी पड़ेगी ना. जितनी हमने ज़ोर से उसे पकड़ा हुआ है उससे ज़्यादा एनर्जी दे के उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा. ठीक है. द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इज़ लॉस्ट फर्स्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स तो वैसे ही फेल होते हैं. जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर वही होते हैं. तो उन्हीं के ऊपर न्यूक्लियस का जो गज़ब होता है वो थोड़ा सबसे कम होता है. ठीक है ना. इनर शेल्स पे तो ज़्यादा होता है. तो वही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं. हम सबसे पहले उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और वैलेंस शेल जो है इट एक्सपीरियंसेस द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन. ये सारी बातें वो हैं जो हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है. ये बातें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी. नाउ वी हैव टू डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द आयनाइजेशन एनर्जी. वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है एटॉमिक रेडियस. आप सोचो ना, रेडियस साइज़ इतना ज़्यादा होगा, अगर इतना बड़ा साइज़ है न्यूक्लियस से इतना दूर, इफ़ेक्ट तो करेगा. और कहाँ एक एटम जिसका छोटा सा साइज़ है, न्यूक्लियस कितना पार्ट्स. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल. ये साइज़ में ही बात आ जाती है. डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का, फिर ही हम अंदाज़ा लगाएंगे ना. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, हमने पढ़ा था डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. तो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसने लूजली सा पकड़ा हुआ है, तो फिर तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन आउट. ठीक है. लेकिन अगर तो डिस्टेंस हुआ कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी. इसलिए डिस्टेंस भी जो है ये इफ़ेक्ट करेगा आयनाइजेशन एनर्जी को. नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ़ द शेल्स. किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं? अगर खाली के शेल इन्वॉल्व है तो सिर्फ फर्स्ट शेल है, तो वहाँ पे तो न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है. और अगर एल शेल भी इन्वॉल्व है तो फर्स्ट शेल के बाद एल है तो न्यूक्लियस की पावर थोड़ी कम हो गई होगी. ठीक है. तो नंबर ऑफ़ शेल्स पे भी डिपेंड करता है. न्यूक्लियर चार्ज, हम पहली वाली बातों में हमने डिस्कस ये किया कि न्यूक्लियस का काम उसमें क्या है. न्यूक्लियर चार्ज कितना है? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा हार्डली वो बाउंड होगा, तो इट इज़ मोर हार्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एंड फाइनली वी हैव द शील्डिंग इफेक्ट. कितने इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं, कितने इनर शेल्स शील्ड कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है. जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आपस में कितनी रिपल्शन है, वो न्यूक्लियस को उन्होंने कितना जो है न्यूक्लियस की जो फोर्स है उसे वैलेंस सेल को उन्होंने कितना बचा के रखा हुआ है. ठीक है. तो ये भी डिपेंड करता है. आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो शील्डिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करती है. ठीक है. अब हम वन बाय वन देखते हैं. एटॉमिक रेडियस को सबसे पहले देखते हैं. सो इन द केस ऑफ एटॉमिक रेडियस वी हैव द ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस द लेस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी. अगर तो एटॉमिक रेडियस होगा बहुत ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि रेडियस जो है हमें पता है पीरियड में डिक्रीज़ कर रहा है, और इंक्रीज़ कहाँ करता है? ग्रुप में. यानी जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो रेडियस हुआ बहुत ज़्यादा. ठीक है. बहुत ज़्यादा रेडियस होने का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल ज़्यादा. अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा तो इट इज़ मोर ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. और अगर ज़्यादा से ज़्यादा, देखो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं वी नो दैट नंबर ऑफ़ द शेल गो ऑन इंक्रीजिंग वाइल मूविंग इन द ग्रुप. ठीक है. तो नंबर ऑफ़ शेल जब ज़्यादा होते जाएंगे तो इट विल बी ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. आप देखो ना, जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो तो हर नए एलिमेंट में एक शेल ऐड हो रहा है. जब शेल ऐड हो रहा है इसका मतलब है डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है. जब डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, ठीक है, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, हम इलेक्ट्रॉन को उड़ा ले जाएंगे। तो जब हम क्या होता है, हमने क्या देखा है इसमें, एक जो इनकी डिपेंडेंस है वो कैसी है कि जब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता जा रहा है ना तो हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा अगर, तो न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को भी तो ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। सो वी हैव टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एनर्जी टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। इट मीन्स देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दैम। न्यूक्लियर चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। अच्छा, एंड वी नाउ नो दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड वी मूव इन द सेम शेल। एक ही शेल होता है। जब शेल एक ही होता है तो जब हम ईच एलिमेंट टू द राइट, जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं ना, तो राइट साइड पे हर नेक्स्ट एलिमेंट हैज़ वन मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस देन द लास्ट वन। एक बात तो ये है कि सेम ही शेल है सब में, सब एलिमेंट्स में एक ही शेल है, ठीक है ना। दूसरी बात हमने क्या की है कि हर नया एलिमेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैज़ वन मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस देन द लास्ट एलिमेंट, and correspondingly the electron that is added is in the same shell, is at the same distance, okay. So as we move right, strong force of attraction of the nucleus felt by valence electron, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं ना तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस की पावर जो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो देयर विल बी द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस है। सो एटम श्रिंक्स, एटम का साइज़ क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। जब हम पीरियड में मूव करते हैं ऐसा ही होता है ना कि एटम का साइज़ छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा हो रही होती है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। तो मोर हार्डर इट इज़ टू लूज द इलेक्ट्रॉन, okay. So when we move in the period, the nuclear charge goes on increasing, the number of the proton is adding in the in the nucleus, and the electrons are adding in the same shell. So this result in more strong force of attraction of the nucleus, and the nucleus strongly, even more strongly attracts the valence electron, and because of this attraction the size of atom shrinks and it will become more harder to lose the electron. Electrostatic force of attraction between the nucleus and the valence shell, electron, हमें पता है ना, it will decrease as the distance increase. तो here the distance, यहाँ पे opposite phenomena, here the distance is decreasing, so फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम मोर। यहाँ पे ऑपोजिट काम होगा ना, डिस्टेंस जो है उस, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की टुवर्ड्स द वैलेंस शेल, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो चूंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा होता है, साइज़ छोटा हो जाता है ना, डिस्टेंस कम हो जाता है। जब डिस्टेंस कम हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज शील्डिंग इफेक्ट। इस पे कैसे डिपेंड करता है? सो फॉर द शील्डिंग इफेक्ट, इफ़ वी हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट देन देयर विल बी less energy required to remove the electron. So high shielding effect means low ionization energy. There is the inverse relation between the shielding effect and the ionization energy. Shielding effect of the inner electron causes the valence electrons to be less strongly attracted by the nucleus, making it easier to remove electron. ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा शील्ड करेंगे, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो लेस स्ट्रांगली
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर होगी. ठीक है. सो next is the shielding effect increases in the group. We know shielding effect increases in the group. As the shielding effect go on increasing, ionization energy go on decreasing. So easy it will be in the group to remove the electron. Now summarize the trends of ionization energy in the period. In the period, ionization energy go on increasing as we move from left to right. What are the reasons behind ionization energy increases in the period? Why? Reasons क्या हैं? Even अगर आपको पेपर में खाली ट्रेंड ही पूछते हैं ना, what is the trend of ionization energy in the period, you are bound to write the reasons. Reason number 1 is, as in the period the number of the shell remain the same. As the number of the shell remains same, the nuclear charge increases. न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज कर रहा होता है? क्योंकि शेल तो वही होता है ना, और प्रोटॉन ऐड हो रहा होता है, और प्रोटॉन जो ऐड हो रहा होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन उसी डिस्टेंस पे होता है, तो न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो रही होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है. एंड एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. Due to this increase in force of attraction, the distance between the nucleus and the valence shell decreases, because the nucleus now tightly holds the valence shell electron, and because of this the atomic radius decreases and shielding effect remains the same in the period. ये सब reasons हैं जो आपने इसमें लिखनी है कि पीरियड में ये क्यों इंक्रीज़ करती है. और मज़े की बात ये है ये सेम रीज़न्स शील्डिंग इफ़ेक्ट में है. जब आप शील्डिंग इफ़ेक्ट लिख रहे होगे ना, तो आप यही रीज़न्स लिखोगे. बस यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट रिमेन द सेम आप काट दोगे, क्योंकि ये तो आप ऊपर मेन ट्रेंड में लिखोगे. इसी तरह जब आप लिख रहे हो एटॉमिक रेडियस, तो आप लिखते हो ना, एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. रीजन्स में सिर्फ एटॉमिक रेडियस वाली यहाँ से रीज़न काट दोगे, बाकी सारी ऐसे की ऐसे ही लिखोगे. ठीक है, एज सच आप लिखोगे. इसी तरह हम ग्रुप में अगर समराइज़ करें तो ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप इज़ आयनाइजेशन एनर्जी गो ऑन डिक्रीजिंग, कम होती जाती है. लिथियम की आप देखो 500 से थोड़ा ऊपर जा रही है, सोडियम की 500 से ज़रा सी नीचे है, फिर पोटेशियम और नीचे है, रुबीडियम और नीचे है, सीजियम और नीचे है. ठीक है, तो ये एक ही ग्रुप है ना, ग्रुप 1. ये एक ही ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. तो इनमें हमने क्या ट्रेंड देखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है. ठीक है, तो क्यों कम होती जा रही है अब हम ये देखते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन द ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ द शेल इंक्रीजेज इन द ग्रुप. जब शेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो वो डिक्रीज़ करता है. क्यों? क्योंकि शेल ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इंक्रीजेज. अब न्यूक्लियस ने इतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ा हुआ, हल्का सा बाउंड है, तो क्या होगा कि डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा. न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन तो कहेगा ना मैं बाहर को, फिर रेडियस इंक्रीज़ कर जाता है. और शील्डिंग इफ़ेक्ट हमें पता है बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर शेल्स इन द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ करता है. तो ये सारी रीजंस की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज़ करती है. क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और, हमने कहा आउटर मोस्ट सेल में हमने सोडियम की एग्जांपल ली थी, 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने नॉकआउट कर दिया. पीछे सेकंड शेल था, उसमें 8 पूरे थे, वो कंप्लीट हो गया. लेकिन आप देखो, इफ़ वी हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के निकाल देने से स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना. लाइक इन केस ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये थर्ड शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकलने चाहिए ना.
तो पहले मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अब एक और है, उसको रिमूव करेगा तो स्टेबल होगा, फिर थर्ड शेल ख़त्म हो जाएगा ना। तो वो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी नीडेड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन इन 1 मोल ऑफ गैशियस 1+ आयन। अब जो हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो न्यूट्रल एटम से तो रिमूव नहीं करना, वो हमने यूनी पॉजिटिव आयन से रिमूव करना है। यूनी +1, यूनी पॉजिटिव +1 है आयन के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो जब +1 से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो +1 में एक और निकाल दिया तो प्रोटॉन एक और ज़्यादा हो गया ना, +2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, +2 क्या शो कर रहा है, इसमें 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमें निकालना पड़ता है। जैसे आप देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले हम 1 निकालेंगे तो +1 चार्ज आ जाएगा एल्यूमिनियम पे, फिर सेकंड निकालेंगे +2 आ जाएगा, फिर थर्ड निकालेंगे +3 आ जाएगा, और फिर एल्यूमिनियम जाके स्टेबल होगा। ठीक है, तो अच्छा, फिर एक और बात, एटम को हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया था एटम से, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था वो हमने एक न्यूट्रल एटम से रिमूव किया था, डैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक रिमूव कर दिया, अब तो एटम के ऊपर +1 चार्ज आ गया है, अब तो उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया है कितना। तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसको तो शदीद मुश्किल है ये काम, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होना। ठीक है ना, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन, बिकॉज in an element second ionization energy is the energy required to remove outermost or least bound electron from +1 ion of the element, because the positively charged bind the electrons more strongly. The second ionization energy of the element is always higher than the first one. ठीक है, फर्स्ट वन में तो न्यूट्रल था भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव जो थे वो बैलेंस थे, लेकिन जब हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो अब तो पॉजिटिव डोमिनेट करता है, और उस पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंसी ने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली बाउंड कर दिया है, जिसकी वजह से वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, एंड दैट्स वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी हायर देन द फर्स्ट वन। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो हम यूनी पॉजिटिव आयन में से रिमूव करते हैं, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम न्यूट्रल एटम में से रिमूव करते हैं। तो एटम में फिर भी कंपैरेटिवली ईजी है, आयन पे तो पॉजिटिव आयन है, उस पर होल्ड पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस का बढ़ जाता है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारा जो उनको नॉकआउट करना, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना है, वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर देन द फर्स्ट वन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। First ionization energy is the amount of energy required by a gaseous neutral atom to remove outermost electron. Second ionization energy is the amount of energy required by gaseous positively charged atom ion. किस काम के लिए? To remove the electron. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली है लो वैल्यू, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में न्यूट्रली चार्ज्ड एटम है, न्यूट्रल है, और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज एटम है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर देते हो तो एंड प्रोडक्ट पे जो हमारे पास जो एटम है उस पर चार्ज आता है +1, और जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करते हो तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद जब आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया तो अब जो एंड प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +2। ठीक है, ये इन दोनों का कंपैरिजन है। अब हम इसको वही एल्यूमिनियम में आपको बता रही थी, एल्यूमिनियम के केस में देखते हैं कि देखो एल्यूमिनियम में तो 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट बॉल हमें शो कर रहा है, जो अब देखो साइज सबसे बड़ा है,
फर्स्ट बॉल शो कर रहा है कि एल्युमिनियम एटम है, न्यूट्रल एटम है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, आपको एनर्जी देनी पड़ी 577 किलो जॉल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया है, एल्युमिनियम पे चार्ज आ गया +1। अब ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर लिया। अब हमें अगला इलेक्ट्रॉन छुड़ाना उतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि हमें पता चल गया लोगों को कि यहाँ तो चोरी होती है, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स बुला लिया। अब हमें और ज़्यादा फोर्स के साथ एंटर होना पड़ेगा अगला इलेक्ट्रॉन जो है निकालने के लिए। तो हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखें कितनी आई, 1814 किलो जॉल पर मोल। आप देखो मोर देन ट्रिपल है, ठीक है ना। आप उसको 3 टाइम्स करो तो फिर भी शायद 3 टाइम्स या उससे ज़्यादा वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा, अब ये एल्युमिनियम पे +1 चार्ज आ गया, हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था। अब एल्युमिनियम से जब 1 निकाला था, फिर हमने एक और निकाला 1814 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देके। तो अब एल्युमिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल लिए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया है, +2, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि 3 होते हैं ना, वो 1 निकलेगा तो एल्युमिनियम स्टेबल होगा, सांस उसे तभी आएगा जब ये भी तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये तीसरा देने के लिए हमें सेकंड से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि अब 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा थे उसमें, ठीक है ना। तो अब हमने एनर्जी कितनी दी, 2742 किलो जॉल पर मोल। हमने इतनी एनर्जी ज़्यादा दी, और फिर क्या हुआ कि हमने थर्ड 1 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया, और अब जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसके ऊपर चार्ज क्या था, Al+3 शोज इट हैज़ 3 electrons less than number of the protons that are present in the nucleus, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमें मोर एंड मोर एनर्जी रिक्वायर होगी, क्लियर। नाउ टाइम फॉर द होम असाइनमेंट। डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, आप डिफाइन करोगे वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज इन ग्रुप, आपको यहीं से स्लाइड मिल जाएगी। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड, आप अच्छा यहाँ मैंने ट्रेंड पूछा है ना, तो यू आर बाउंड टू राइट द रीजंस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करना है, तो साथ आपने एक इक्वेशन भी देनी है। आप बेशक सोडियम की दे दो, मैग्नीशियम की दे दो, कोई एक एटम में से, बेशक आप सिंपल A गिव्स A+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब बेशक आप एक फिक्टिशियस एटम कोई बना दो, लेकिन इक्वेशन आप देनी है आपने, ठीक है। वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन द फर्स्ट वन, ये भी आपको इधर से स्लाइड मिल जाएगी। वाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन पीरियड, यहाँ भी आपको रीजंस यहीं से मिल जाएंगी। वाई डज द बिगर साइज एटम हैज़ मोर शील्डिंग इफेक्ट, अच्छा अब साइज बिग कहाँ होता है, ग्रुप में होता है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट के ग्रुप वाली जो हमने रीजंस लिखी थी ना, वो सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। ग्रुप में आप ट्रेंड भी लिखोगे और रीजंस भी लिखोगे। व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हैलोजन, हैलोजन कहाँ है, 7th पीरियड में। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो देखो ना, 8 से पहले 7 एक्सट्रीम राइट हो गई ना, तो ज़ाहिरी बात है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये तो डिफ़िकल्ट होगा ना हैलोजेंस में से रिमूव करना, तो पीरियड में जो हमने रीजंस लिखी हुई है ना, वो यहाँ आ जाएंगी। वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम इज़ लेस देन डैट ऑफ द मैग्नीशियम, आप देखो सोडियम मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं। सोडियम मैग्नीशियम 3rd पीरियड में प्रेजेंट है, पहले सोडियम है, 2nd नंबर पे मैग्नीशियम है, ऐसा ही है ना। तो जब आप पीरियड में मूव करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। तो पहले सोडियम आता है, सोडियम की कम होगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की और उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया सोडियम की कम क्यों है, मैग्नीशियम की ज़्यादा क्यों है, तो पीरियड में ये दोनों हैं, तो पीरियड वाली रीजंस लिख दो। Why does the shielding effect decreases the force of attraction of the nucleus and the outermost electron? शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज क्यों करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो डिक्रीज़ क्यों कर देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शन होती है, और वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम कर देते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है,
ठीक है, अब इन सब की आपने मुझे असाइनमेंट सेंड करनी है और होप्स हो कि आपको समझ आ गया हो, नहीं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू।